Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farooq, your course instructor for the GIS and remote sensing. This is week number 5, and we are going to talk about vector data processing and analysis. Previously, we talked about the digital representation of geographic data, and in that, we talked about what is a geographic matrix and what is geographic space and how we represent the real world data in GIS format. Definitely, there are some object based data modeling, and then there is phenomena based data modeling. So we can represent the real world data in the form of object or in the form of phenomena. If you're talking about the object, it means discrete and definite shape, and if you're talking about phenomena, it means that is a kind of continuous data like temperature, like elevation of different places or points. And then we talked about how you can define the spatial relationships, because GIS is not all about to represent the data on the map. It is more than that, and we can define the spatial relationships between the different features of the map, and we can also establish the temporal relationships for the change detection studies. Similarly, we talked about the vector-based GIS data processing techniques, and in that, this is what the topic we will continue discussing in this lecture as well. So then we talked about the structure of the vector data. It means how you can represent the digital data related to the you can say the geographic or spatial features. So we can represent the data in vector format, and also we can represent the data in raster format. So we can represent the vector data for the discrete and definite objects. So we can represent in points, lines, or in the polygons. And later we talked about the different input functions, and then we talked about a flow diagram where we have input functions, analysis functions, and output functions. So we talked about how you can produce your data if you do not have any data related to vector data processing. So you can have like a digital, you can digitize as the data if it is in the form of JPEG or in hard form. So you also did the exercise on digitization of the data. So professionally, we have digitizing tables, we have image scanning techniques, and then definitely we can import the data from other sources to process in the GIS. So then we talked about the the data that is being produced from the other sources, like the data. You can say the remote sensing data or the data produced by someone else, and we are going to use in over GIS processing and analysis as an input file. So these things are discussed already. So we will continue talking the vector data processing. Another important thing that we need to understand is the common formats those are available to process the data in GIS environment. So we do have a kind of you can say the generally what we do, we actually process the normal digital data in the form of like if you capture a picture in JPEG,
GIF and PNG or TIFF format. So these are the common picture format. Those are used to represent the photos those we take from our cameras. And if you are going to digitize any feature in GIS environment, then whatever we digitize, that is in the form of shapefile. So shapefile is the basic format in which we save the vector data, right? And then where we save that shapefiles, we need to create either a personal geodatabase for our data, or we can have a file geodatabase, right? So these are the different ways we can deal with the vector data. So then there is another data that is associated with the shapefile. It is called as attribute data. So that is a kind of metadata, you can say. So attribute data are stored logically in flat files. तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि जो जब आप शेप फाइल्स जनरेट करते हैं, किसी भी फीचर को डिजिटाइज करते हैं, देन you can have the attribute data file for that particular feature as well in the left side of the GIS template. और वो जो टेम्पलेट है उसके अंदर आप लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो डिफरेंट फाइल्स के नाम जो आपने प्रोड्यूस किए हैं वो ऑलरेडी विजिबल होंगे। जब आप उसको राइट क्लिक करते हैं तो उससे ऑप्शन आती है एट्रीब्यूट टेबल। तो एट्रीब्यूट टेबल के अंदर यू नो दैट के ऑलरेडी जो आपने जो भी डिजिटाइजेशन की होगी, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर पॉलीगॉन्स की या पॉइंट्स की आईडी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको आईडी दी होगी और उसके बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट कंपोनेंट्स वहाँ पे गिवन होंगे। लेट्स सपोज आप कोई पॉलीगॉन डिजिटाइज करते हैं तो उसके हिसाब से आप वो क्या कर सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, या अदर टाइप ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो उस पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, या कोई माइनिंग एक्टिविटी है उसकी इंफॉर्मेशन है, या कोई और इस तरह से कोई फॉल्ट्स है, स्ट्रक्चर मैप है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, वो डाटा आप जब किसी पर्टिकुलर फीचर को मैप के ऊपर डिजिटाइज करते हैं तो उसके अंदर अगर वो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। और डिजिटल जो आप जियो डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर जो है वो सारा डाटा आपका स्टोर होगा, और एक फाइल के साथ 3-4 एक्सिलरी फाइल्स भी बनती हैं, तो वो सारी एक ही जगह पे आप सेव करते हैं। अगर आप अदर देन जीआईएस उन फाइल्स को ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, उसके लिए फिर आपको जीआईएस के थ्रू उस पर्टिकुलर जियो डेटाबेस के अंदर जाना होगा, और वहाँ से फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से आपने कोई एक्सिलरी फाइल डिलीट कर दी तो वो जो डाटा है दैट विल नॉट बी फंक्शनल, और it will show some errors when you are going to open it in the GIS. All right. So here we have talked about the shape files and attribute tables. Now, once we are done with the map and we have, let's go digitize the map, and we have displayed the different type of features on it, then we need to build a topology. Topology means we need to show the connections between the different features. It means कि जो भी आपने जो क्या कहते हैं उसे फीचर्स डिजिटाइज की हैं उनका आपस में हम रिलेशनशिप आपने बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी एरिया का जो मैप है, लोकेशन मैप है, रोड्स हैं, वो आपने सारी डिजिटाइज की हैं, तो फिर आपने रोड्स के कनेक्शंस को डिफाइन करना, ठीक है। तो रोड्स के कनेक्शंस तभी डिफाइन होंगे जब वो प्रॉपरली सारे जो नोड्स हैं, जो सारी इंटरसेक्शंस हैं, वो सारी टोपोलॉजिकली इंटरलिंक्ड हो, ठीक है। तो टोपोलॉजी जो है दैट एक्चुअली अलाउज ऑटोमेटेड एरर डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन। सो रेयरली द मैप्स आर टोपोलॉजिकली क्लीन, ये चीज आपने याद रखना, व्हेन डिजिटाइज्ड और इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब आप डिजिटाइज करते हैं तो उसकी टोपोलॉजी बिल्डअप बहुत जरूरी है, और उसमें से एरर्स को रिमूव करना है। जब आप एरर्स को रिमूव कर देते हैं, गैप्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया
graphical editing. ठीक है, there are different tools available in GIS. Those are used to do the graphical editing. So in that way we can clean the data. जब डेटा क्लीन हो जाता है तो फिर आप टोपोलॉजी बिल्डअप कर सकते हैं, अदरवाइज टोपोलॉजी जो है वो बिल्डअप नहीं होगी अगर किसी भी कनेक्शन के दरमियान गैप होगा या कोई और जो फीचर है वो आपका प्रॉपर्ली डिजिटाइज नहीं होगा, राइट? सो GIS सॉफ्टवेयर हैज टू बी एबल टू बिल्ड topology from unconnected arcs nodes that are close together are snapped. जहाँ पे गैप्स होगा डिफरेंट नोड्स में, जब आप टोपोलॉजी बिल्डअप करेंगे तो आप ग्राफिकल एडिटिंग के थ्रू पहले उसकी जो है वो एरर रिमूवल करेंगे, अब वहाँ से इरेज करेंगे अगर कोई अंडर आपकी ओवर शूटिंग है डाटा के अंदर, तो वो सारी चीज़ें करते हैं तो फिर टोपोलॉजी बिल्डअप होगी, वरना टोपोलॉजी एरर दे देगी, फिर उसके बाद आपको दोबारा से वो जब तक फिक्स नहीं करेंगे आपकी टोपोलॉजी जो है वो बिल्डअप नहीं होगी. So inshallah there will be an exercise that you will perform where you can also build the topology to have the network analysis of a particular map, whatever you will be digitizing in the lab, right? So if two features are adjacent, connected or coincident with each other, editing the shape one of one will change other shape as well. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टोपोलॉजी बिल्डअप करते हैं तो वो जो एडजेसेंट फाइल्स होती हैं, लेट्स सपोज कि एक तरफ आपकी रोड है और एक तरफ आपका जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, और मेन रोड के साथ वो अटैच्ड है, उसके बाद उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फिर डिफरेंट स्मॉलर रोड्स होंगे, ठीक है. तो अब वो जो घर हैं उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बाउंड्रीज शेयर होती हैं, ठीक है. टिपिकली जो 5 मरले के प्लॉट्स होते हैं या घर होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि बाउंड्री जो होती हैं वो शेयर्ड होती हैं. तो इट मीन्स कि अगर आप एक की बाउंड्री छेड़ेंगे तो दूसरे की बाउंड्री उससे अफेक्ट होगी, ठीक हो गया. तो इस तरह से ये चीज़ें फिर देखनी होती हैं कि आपने प्रॉपरली टोपोलॉजी को बिल्डअप करना है ताकि मेजर जो है वो डिस्टर्बेंस डिफरेंट शेप्स के अंदर वो ना हो, राइट? तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये लैंड पार्सल्स हैं, फिर उसके बाद रोड्स हैं. रोड्स के लिए डेफिनेटली आपने डिफरेंट जैसे बस स्टॉप्स होते हैं, फिर वो रोड के साथ डिफरेंट एरियाज में वो कनेक्टेड होंगे, तो इस तरीके से आप ये बिल्टअप कर सकते हैं. जैसे गाड़ी जो है अभी जैसे ऑरेंज लाइन आपने अगर सफ़र किया है तो उसमें ये होगा कि आप को पता चलता जाएगा कि मैप डिजिटल मैप्स आप बना सकते हैं जिसमें पता चलेगा कि अभी आपकी ट्रेन किस तरफ है और कितनी दूर है और कितने मिनट्स में वो यहाँ पे पहुँच रही है. तो ये सारा जो है वो स्पेशली रेफरेंस डेटा जब आप यूज़ करते हैं, ये लाइव डाटा अगर यूज़ हो रहा होगा तो इस तरह के मैप्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर. आई डोंट नो, मुझे अभी कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बाहर ऐसे ही होता है कि डिजिटल मैप आपका लाइव जो लोकेशन है उसको शो कर रहा होता है कि आपकी जो ट्रेन है इस वक्त कहाँ पर कितने टाइम में पहुंचेगी. सिमिलरली जैसे उबर है या करीम है तो वहाँ पर वो भी आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इस वक्त कहाँ पे और कितना डिस्टेंस तय करेगी, और अगर ट्रैफिक का लोड है तो वो भी उसको वो बता देगी कि अभी यहाँ पे कौन कौन से जोन्स में ट्रैफिक जो है वो जैम है या वहाँ पे स्लो है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टोपोलॉजी बिल्डअप करने की मदद से ही आप ले सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस की मदद से ही आप कर सकते हैं. टोपोलॉजी को आपने इस सेंस में याद रखना है कि टोपोलॉजी जो है वो डिफरेंट फीचर्स की कनेक्टिविटी का नाम है, ठीक है, और वो डिफरेंट फीचर्स कनेक्ट कैसे होंगे जब वो प्रॉपरली उसकी ग्राफिकल एडिटिंग हो चुकी होगी, ठीक है. ग्राफिकल एडिटिंग से आपने एरर्स को रिमूव कर लिया होगा, तभी जो है वो टोपोलॉजी बिल्डअप होगी, राइट? सो टोपोलॉजिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं, उन मॉडल्स की मदद से आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. टोपोलॉजी में क्या है? मैथमेटिकल मेथड टू डिफाइन स्पेशियल रिलेशनशिप्स, ठीक है. डिफाइन हाउ पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन फीचर्स शेयर कोइंसिडेंट बाउंड्रीज, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया. सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स लाइक आर्क नोड मॉडल. आर्क नोड का मतलब ये है कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये आप यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो ये इसका नोड हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से एक रोड इधर जा रही है तो ये भी आपके पास एक नोड बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ जा रही है रोड तो यहाँ पे भी एक नोड बन जाएगा. अब ये इसको कहते हैं आर्क नोड मॉडल, ठीक है. इसकी मदद से आप टोपोलॉजी बिल्डअप करते हैं. तो
आप किसी भी एरिया में जैसे गूगल मैप है उसमें डिफरेंट रोड्स का जो नेटवर्क है वो इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोपोलॉजिकल जो आप मॉडलिंग करते हैं उसमें स्पेशियल ऑपरेशंस होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप करते हैं। तो वो जो स्पेशियल ऑपरेशंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टिग्यूटी, स्पेशियल रिलेशनशिप ऑफ एडजेसेंसी, स्टैंड ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज एडजेसेंट टू द डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी का मतलब क्या है? कॉन्टिग्यूटी का मतलब ये है कि एक चीज दूसरे के साथ जो है वो स्पेशली जो है वो लोकेट कर रही है कि एक जगह पे, मतलब जैसे फॉरेस्ट है उसमें यहाँ पे ये वाले ट्रीज हैं, यहाँ पे ये ट्रीज हैं, यहाँ पे ये ट्रीज हैं, या एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बाउंड्रीज ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरह का जो एनालिसिस है या ऑपरेशन उसे कहते हैं कॉन्टिग्यूटी, राइट। सिमिलरली एक है कनेक्टिविटी, interconnected pathways और networks, street and trail networks, stream networks, ये है कनेक्टिविटी कि एक जो पाथवेज, इट मीन्स के जो आपका जो रोड नेटवर्क है वो डिफरेंट वो रोड्स ही हैं, कुछ स्मॉलर रोड्स होंगी, कुछ बिगर रोड्स होंगी, ठीक है। तो वो सारों को इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रीट नेटवर्क है, ट्रेल नेटवर्क है, स्ट्रीम नेटवर्क है, जैसे रिवर्स के लिए होता है। तो वाटरशेड जो एक्सट्रैक्शन है वो भी इसी बेस पे होती है, नेटवर्क एनालिसिस की बेस के ऊपर, ठीक है। All right. So how you can create the topology? Actually, you will go to Arc Toolbox. Arc Toolbox से आप familiar हो चुके होंगे, ठीक है। जब आप Arc Toolbox में जाएंगे तो उसके बाद आपके पास, अगर आपने डिफरेंट फीचर्स को जो है वो आपने डिजिटाइज किया होगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है ना वो जो फीचर जहाँ पे आपके सारे जो है वो सेव्ड हैं, वहां पे जाके आप मतलब उस फोल्डर के अंदर जाके उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके फिर उसके बाद आप लेट्स सपोज आप न्यू जो है वो टोपोलॉजी बिल्टअप कर रहे हैं, न्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद ये टोपोलॉजी की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो भी फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में है, वो आपके लाइंस की फॉर्म में है, या वो जो पॉलीगॉन्स की फॉर्म है, वो सारे को आप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर आप उसके बाद जो टोपोलॉजी आप बिल्डअप करेंगे, नेक्स्ट ले जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर वो टोपोलॉजी बिल्डअप हो गई है तो इट मीन्स कि आपका जो डेटा है दैट इज एरर फ्री। इफ इट इज द टोपोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल then you need to see what type of errors are there, maybe कुछ links missing होंगे, कुछ आपस में कनेक्टिविटी का मसला होगा, फिर आपने उसको ग्राफिकल एडिटिंग टूल्स की मदद से उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसी की कंटिन्यूटी मैंने डिस्कस की कि आप फिर वैलिडेट करेंगे टोपोलॉजी को। इट मीन्स कि आपने जब यहाँ पे रन किया टोपोलॉजी को, एरर्स आ गए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपको दोबारा से फिर वो क्या कहते हैं उसे उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो एडिटिंग जो है वो अगर तो टोपोलॉजी आपकी बिल्टअप हो गई है देन यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ यू कैन से एडिटिंग एक्टिविटी, राइट। इस तरह से आप टोपोलॉजी को बिल्टअप करते हैं। Hopefully you will be having an exercise on network analysis very soon. So topology matters a lot because this is very important thing in GIS, क्योंकि maps जो हैं वो उनको आपने उसकी कनेक्टिविटी शो करनी है। कनेक्टिविटी शो करने में क्या होगा कि आपने तभी तो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तभी तो आप डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो टोपोलॉजी बिल्डअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो टोपोलॉजी जो है उसको जो है वो जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, टोपोलॉजी जो है वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी में आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपने टोपोलॉजी को नाम देना है, उसमें फिर आप उसके लिए इट मीन्स कि आप एक जो है वो एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिर आपने फीचर्स को ऐड करना है, ठीक है। और उसमें आपने क्लस्टर टॉलरेंस का मतलब है कि अगर आपके जो है वो कुछ एरियाज में जहाँ पे गैप्स होंगे, अगर लेट्स सपोज लिंक्स प्रॉपरली नहीं है डिफरेंट फीचर्स के दरमियान में, तो फिर क्या होगा, वो फिर आपने क्लस्टर टॉलरेंस उसको ऐड करनी, वहाँ पे कितना करीब कोई पॉइंट और आपस में वो ज्वाइन हो जाए। तो इस तरह से आपने
उसको इसकी टॉलरेंस को करना है। उसके बाद सेट द रैंक्स, रैंक का मतलब ये है कि पहले कौन सी चीज़ और उसके बाद कौन सी चीज़ आपस में इंटरलिंक होगी। लेट्स सपोज अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डेफिनेटली आपने रैंक्स डिफाइन करने की, छोटी रोड कौन सी है, बड़ी रोड कौन सी है, सर्विस रोड कौन सी है, मेन रोड कौन सी है। तो इस तरीके से आपने उसको प्रेफरेंस देनी है। सेट द रूल, आपने फिर उसके बाद रूल लगाने हैं। वो रूल्स अवेलेबल होंगे कि आपने किस किस्म के फीचर्स को किस तरीके से लिंक करना है। ठीक है। क्रिएट द टोपोलॉजी, अगर तो एरर फ्री डाटा है तो इट मीन्स के आप उसकी वैलिडेशन विल बी ओके। अगर वो वैलिडेशन उसकी ओके नहीं होती, इट मीन्स के वी नीड टू लुक फॉर ओवर डेटा। ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसका की इसे कहते हैं स्नैपिंग। अगर तो ये सारे नोड्स आपस में मिल जाते हैं तो इट मीन्स कि ये स्नैप्ड है। अगर ये नोड्स आपस में नहीं मिले हुए तो इट मीन्स कि दीज आर अनस्नैप्ड नोड्स। ठीक है। इसको आप टोपोलॉजी की मदद से ठीक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी वेक्टर डेटा प्रोसेसिंग, और उसके अंदर हमने डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, और डेटा जो है वो उसमें शेप फाइल्स होती हैं, एट्रीब्यूट टेबल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कि टोपोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर बेस्ड डेटा। उसको जो है वो परफॉर्म करना चाहिए अगर आपने मैप्स के ऊपर एनालिसिस रन करना है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द वेक्टर डेटा एनालिसिस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो डाटा है उसका साइज बहुत छोटा होता है, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी इजीली हैंडल्ड। ठीक है। आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, इजी टू अपडेट। एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड विद द ऑब्जेक्ट्स, कि जो जो ऑब्जेक्ट्स आप डिजिटाइज करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास एट्रीब्यूट टेबल में इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। सो प्रिजर्व्स क्वालिटी आफ्टर इंटरएक्टिविटी। अगर आपने प्रॉपर टोपोलॉजी बिल्डअप कर दी है, पूरा एरिया आपका डिजिटाइज हो गया है और ग्राफिकल एडिटिंग के थ्रू आपके एरर्स रिमूव हो गए हैं, तो इट मीन्स कि वो सारा जो डाटा है वो आपका अच्छी क्वालिटी का प्रिजर्व हो जाएगा। मोर सोफिस्टिकेटेड इन स्पेशियल एनालिसिस। तो स्पेशियल एनालिसिस जब परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर फिर आपने स्पेशली जो है वो डाटा को केयरफुली डील करना है। ठीक है। अगर वो इंटरकनेक्टेड है तो फिर ही एनालिसिस जो है वो रन होगा। राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉन्टिन्यूस डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेड इफेक्टिवली। कॉन्टिन्यूस डाटा, क्योंकि वेक्टर डाटा में डेफिनेट शेप्स वाले चीज़ों का हम रिप्रेजेंट करते हैं इजीली। तो जैसे अब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की कोई शेप नहीं है, ये ग्रिड की बेस में ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स के फिर जो ऐसे फीचर्स जो आपके कॉन्टिन्यूस हैं उनको वेक्टर फॉर्मेट में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी इफेक्टिविटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास रास्टर फॉर्मेट होता है और वेक्टर फॉर्मेट। तो जो एडवांटेजेस आपको रास्टर फॉर्मेट के हैं वो काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे आपके वेक्टर फॉर्मेट के, और जो वेक्टर फॉर्मेट के एडवांटेजेस हैं वो आपके रास्टर फॉर्मेट के आई मीन मोर और लेस वही डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसका और डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशियल एनालिसिस एंड फिल्टरिंग विद एन पॉलीगॉन इज डिफिकल्ट। ठीक है। ये भी हम देखेंगे कि जो बहुत सारी अगर आपकी लेट्स सपोज के हंड्रेड्स ऑफ पॉलीगॉन्स बन गई हैं तो उसमें कुछ ऐसी